this day. Bless the family and children of Sunday school and teachers. Bless, give me intelligence to read Bible and all the Sunday school students. And God heal to coronavirus and who didn't get food, them also give food and help them God. We also help them God and God, you also giving me to eat food and everyone. Thank you Lord, and God, we are doing bad things. Sorry God, in Jesus' name, Amen. येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्या सारखा कोणी नाही. येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्या सारखा कोणी नाही. कोणी नाही, कोणी नाही. मी चाललो येते तेथे, मी शोधलो येते तेथे. मी चक्र मारिल्या येते तेथे. कोणी नाही, कोणी नाही. यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. कोई नहीं, कोई नहीं. मैं चलता यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ. कोई नहीं, कोई नहीं. There is no one like Jesus. 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 I'm walking here and there. I'm searching here and there. I am turning around here and there. There is no one like Jesus. There is no one like Jesus. I'm लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा. अच्छे काम करने वाले राइट में होंगे, बुरे काम करने वाले लेफ्ट में होंगे. अच्छे काम करने वाले राइट में होंगे, बुरे काम करने वाले लेफ्ट में होंगे. लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा. अच्छे काम करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करने वाले नरक में जाएंगे. अच्छे काम करने वाले स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम करने वाले नरक में जाएंगे. लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा. Hello friends, I'm going to tell you about Jim Elliot. Jim Elliot was a good child. He was living in America. He was listening to his parents and other teachers, Sunday school teachers. He was doing all homework, Sunday school homework, school homework. He was doing, and whatever teachers are saying, he was doing. And whatever
his parents are telling he was doing. He was a very good child. He was listening to God stories and not saying bad words. He was going daily Sunday school, and after he studied better and became a very Jim Elliot became a big man. Then he married. His wife's name was Elizabeth. Then after some days, he thought he need to missionary. He was living in Aqua. Then Jim Elliot think I will go to Aqua. Then his neighbors and house all said him don't go. Then also he was gone. He stayed four friends to Aqua and take a small aeroplane. After he Start. they came to Aqua. Then he think he should see or take around they are in mood or not. Then he take around. Then he think they are in mood. Whenever he land, then Aqua people beat him, kill them, and after some years, Jim Elliot's wife came to Start. Jim Elliot's wife came to Aqua. Then Aqua people think we killed to his husband. Then his wife came to kill we. Then Jim Elliot's wife gave them some clothes. Then Aqua people think how good she is. They think Jim Elliot's wife came to Aqua. Then she gave some clothes to them who killed to Jim Elliot. Then Elizabeth said them about Jesus, and then they become a pastor. Thank you, friends. Bye. Men. After Samuel's death, David with his 400 men camped near a place called Maon, where a very rich man lived, called Nabal. Nabal owned 3,000 sheep and 1,000 goats, and lived with his beautiful and kind wife named Abigail. David heard that Nabal was shearing sheep, so he sent 10 of his men with a request of sharing some food with them. They said, "Remember a while back, when your shepherds camped near us, we provided them protection and never took anything from them. Would you show us similar kindness by giving us some food?" David's men were shocked by Nabal's refusal. He said, "Go away and leave me alone. I would never share my hard-earned food with a bunch of people I do not know." David was furious to hear Nabal's response and decided to attack and fight them. This frightened Nabal's servants. One of the servants went to Abigail, Nabal's wife, and told her everything that was happening. "David was always kind to us, but Nabal's mean behavior is now going to put us all in trouble. David will kill us all." Abigail immediately took action and loaded up donkeys with 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 sheep, a bushel of grain, and 300 cakes. She sent her servants to inform David that she was coming with all the food that he required for his own men.
When Abigail went to David, she bowed low to him and requested, "Please, sir, forgive me for Nabal's mean and wicked behavior. If I knew that your men came to request food, I would have given them some myself. Please accept all this food and spare the life of Nabal and our servants." David was pleased to hear what Abigail said. He said, Thank you for stopping me from doing anything wrong. I had planned to kill Nabal, but now I will spare him for what you said. Go back and know that all is well, and I will not attack your people. The next morning, Abigail told Nabal the news. हाय बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? सबको परमेश्वर अच्छा ही रखेगा, क्योंकि हम सब कौन है? परमेश्वर के बच्चे हैं। तो बच्चों, आज पूरा देश क्या है? लॉकडाउन है, मतलब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो परमेश्वर का वचन लॉक है क्या? नहीं। परमेश्वर के बच्चे लॉक है क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? घर में बैठकर ऑनलाइन संडे स्कूल सीख रहे हैं। मतलब परमेश्वर का वचन भी लॉक नहीं और परमेश्वर का बच्चे भी लॉक नहीं। तो बच्चों, आप सब सुनकर क्या करने वाले हो? तो तुम जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी घर में लोग हैं, सबको परमेश्वर के बारे में बताना तुम्हारा काम है। तो बच्चों, आज मैं भी आपको नया स्टोरी बताने वाली हूँ, एक नया सब्जेक्ट बताने वाली हूँ। उसका नाम है जेंटलनेस, यानी संयम, सौम्यता। संयम का मतलब क्या है बच्चों? तो स्कूल में टीचर होमवर्क देती है, अगर हम होमवर्क नहीं किए तो टीचर क्या करती है? आपको डांटती है। डांटने के बाद टीचर को उल्टा सीधा बातें करने का नहीं, तो क्या करने का? संयम से सुनना, क्योंकि गलती किसकी है? हमारी है। संयम से सुनना, सॉरी बोलना, ये क्या है? संयम। मम्मी पापा घर में अगर गलत काम किए हम, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? हमको डांटते हैं। तो उधर भी क्या करने का? मम्मी पापा को उल्टा सीधा बातें करने का नहीं, तो क्या करने का? संयम से सुनना, उनको भी सॉरी बोलना। ये क्या है? संयम। इसको क्या बोलते हैं? जेंटलनेस। पता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जन्म से लेकर मरने तक संयम से जीवन बिताया? पता है कौन है वो? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब छोटा था, मम्मी पापा उसको लेकर मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग थे, सबसे छोटा यीशु मसीह ही था। तो यीशु मसीह को सब लोग प्रश्न पूछ रहे थे, ये कैसा, वो कैसा, ये कैसा, वो कैसा। पर यीशु मसीह सब कुछ संयम से सुन रहा था और वो बातें करते थे, सब कुछ गलत बातें करते थे, झगड़ा करते थे, फिर भी यीशु मसीह संयम से ही सुन रहा था। और बाद में उन सबको यीशु मसीह क्या किया? संयम से सुनकर, संयम से बैठकर, संयम से सब कुछ देखकर वो बाद में परमेश्वर का वचन बोलकर गया। मतलब परमेश्वर, यीशु मसीह हमको क्या सीखना चाहता है? संयम रहना, बड़ों के साथ कैसे रहना, बड़ों का बातें कैसे मानना, ये हमको सीख रहे हैं। और जैसा भी यीशु मसीह बड़ा हो जाता है, तब सब लोग उसको मारने के प्लानिंग करते हैं, उसको मारना, उसके बारे में गलत बातें करना, ऐसा लोग करते थे। ये सब कुछ यीशु मसीह को पता था। लोग मेरे बारे में बातें करते, गलत बातें करते, मेरे बारे में ऐसा बोलते वैसा बोलते, सब कुछ यीशु मसीह को पता था। फिर भी यीशु मसीह क्या करता है? सब कुछ संयम से सुनता है, सब कुछ देखता था, सुनता था, फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि संयम रहना उसका काम है, संयम से सुनना उसका काम है। परमेश्वर ने हमको यही सिखाया ना, संयम रहना, किसी को उल्टा सीधा बातें नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, यही सिखाया ना। तो यीशु मसीह भी वही करता था। और अंत में सब लोग उसको लेकर क्या करते हैं पता है आपको? क्रूस पर डालते हैं। क्रूस पर डालकर उसके जो हाथ पाँव सब कुछ बांधकर बहुत मारते हैं, इतने मारते हैं उसका शरीर में जितने भी खून है वो सब खून बाहर आता है। इतना मारते हैं कि यीशु मसीह मर जाता है। वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य भी है, वो कुछ भी कर सकता था, पर वो एक शब्द से भी किसी को कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसको क्या करना है? संयम से रहना है, संयम से ही रहना उसका काम है।
यही परमेश्वर ने उसको सिखाया, इसलिए परमेश्वर क्या किया, उसको स्वर्ग में लेकर गए और स्वर्ग दिए। इसलिए अगर हम भी संयम से रहा, अगर हम भी मम्मी पापा के पास, टीचर के साथ, सब फ्रेंड्स के साथ संयम से रहा, अच्छा रहा, तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमको भी आशीष देते हैं और हमको भी स्वर्ग में ले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हो सब लोग, अच्छे हो ना? हम तो बहुत अच्छे लेसन सुन रहे हैं और बहुत अच्छे वीडियोस देख रहे हैं सब। आज का लेसन क्या है हमारा? जेंटलनेस, मतलब सौम्यता। आज हमने तो बहुत अच्छा वीडियो देखा है और अच्छा सा लेसन भी सुना है ना? ये लेसन, ये वीडियो में और लेसन में हमने 2 लोगों के बारे में हमने सुना है, सौम्यता के बारे में, है ना बच्चों? तो मैं एक बार वो वीडियो में क्या हुआ था मैं बताऊंगी आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो में अगर हम देखेंगे तो जेंटलनेस के बारे में क्या है, वो बाइबल में से एक लेसन है। वो क्या है? नाबाल एंड अबीगैल। अबीगैल नामक एक स्त्री है और उनके हस्बैंड का नाम है नाबाल। ओके, तो ये क्या हुआ, दाऊद महाराज तो आप सबको पता है ना बच्चों, दाऊद तो हमको वो तो बहुत फेमस है ना? एक बार ना दाऊद महाराज जंगल में थे और उनके साथ उनके सेवक भी थे। तब क्या हुआ, उनको एक बार बहुत भूख लग रहा था, कुछ भी नहीं था, तो उनके पास में ही कौन थे? नाबाल नामक एक आदमी था और वहाँ वो बहुत अमीर था। ठीक है, तो उनको लगा मैं अभी मेरे सेवक को बेचकर वो नाबाल से पूछूंगा कि हमारे सेवकों के लिए थोड़ा खाने के लिए कुछ दे दो ना, क्योंकि तुम्हारे घर में फंक्शन हो रहा है ना, हमें कुछ, हमारे सेवक भूखे हैं तो उनको कुछ दे दो ना करके पूछने के लिए सेवकों को भेजा था। एक्चुअली पहले क्या हुआ था मैं बताऊंगी आपको। पहले जब ये अरण्य में रहते थे, जब ऑलरेडी पहले जब दाऊद महाराज और उनके सेवक अरण्य में रह रहे थे, तब ये नाबाल नामक आदमी, मैंने बोला है ना, उनके सेवक वहाँ काम पर आए थे। तब ये दाऊद और उनके सेवकों ने क्या किया पता है? उनकी देखभाल की थी। जब तक वो अरण्य में रहकर उनका काम देख रहे थे, तब तक ये दाऊद और उनके सेवक पूरे उनके देखभाल कर रहे थे। ओके, तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, दाऊद ने क्या सोचा, तो हमने तो इनको अच्छा किया है, ये हमारे लिए पक्का भोजन रखेंगे, उनका फंक्शन हो रहा है ना, ऐसे करके सोच के सेवकों को भेजा था। मगर नाबाल कितना कठिन आदमी था पता है, उसके पास थोड़ा भी सौम्यता नहीं था, मतलब जेंटलनेस थोड़ा भी नहीं था, वो बहुत कठिन आदमी था, तो और नीच भी था। तो वो क्या बोलता है उनके सेवकों को, तुम कौन हो और दाऊद कौन है, ऐसे करके बोलता है। तो उनके सेवकों को बहुत गुस्सा आता है और वो जाके दाऊद से बोलते हैं कि उन्होंने, नाबाल ने ऐसे बोला है करके। इमीडिएटली दाऊद को ना बहुत गुस्सा आ जाता है कि हमने इतना कुछ उनको अच्छा किया है, भला किया है, तो वो क्यों ऐसे कर रहे हैं करके उनको, चलो अभी सब लोग उठ के जाएंगे और नाबाल को और उनके ख़ानदान के पूरे आदमियों को हम मार देंगे, चलो करके वो बहुत गुस्से से उठता है। कौन? दाऊद। तो इतने में क्या होता है, यहाँ ये हो रहा है, दाऊद यहाँ उठ के नाबाल को मारने के लिए रेडी हो गया था। इतने में नाबाल के सेवकों में एक जाके, उनकी वाइफ है, नाबाल की वाइफ है, मैंने बोला है ना नाबाल बहुत गंदा आदमी है, बहुत नीच है, मगर उनकी वाइफ तो बहुत अच्छी है। तो वो अब उसका नाम क्या है? अबीगैल है। तो उसके पास जाके उनके सेवक में एक बोलता है, वो दाऊद महाराज तो कितने अच्छे हैं, उनके सेवक तो बहुत अच्छे हैं, जब हम जंगल में थे वो हमारा बहुत ही देखभाल किया, हमको बहुत अच्छा किया है, उन्होंने भला किया है करके बोलता है, और हमारे पास आए हैं भोजन के लिए, तो नाबाल ने ऐसे बोला है करके वो उनके वाइफ को पूरा बताता है। तब उनको लगता है अभी क्या होगा करके। इतने में इमीडिएटली वो एक डिसीजन लेती है कि मैं अभी जाके उनके क्रोध को कम कर दूँ करके। तो इमीडिएटली वो क्या करती है, उनके लिए रोटियां, पूरे क्या क्या चाहिए, और रोटियां, फल और सब कुछ उनके लिए क्या क्या खाने के लिए चाहिए वो सब बनवा के वो लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जो उनके लिए खाने के लिए वो देना चाहती थी वो सब लेके वो रास्ते में जा रही थी। इतने में वहाँ से कौन आ रहा है, वहाँ से कौन आ रहा है, दाऊद तो नाबाल को मारने के लिए आ रहा है, और यहाँ से कौन आ रहा है, अबीगैल उनकी वाइफ आ रही है। क्यों? उनको
कूल करने के लिए। अभी देखो बच्चों, बीच में रास्ते में ही वो आके उनसे दंडवंद करके बोलती है, दाऊद महाराज हमें क्षमा कर दो, मेरे हस्बैंड के खिलाफ़ मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा आदमी नहीं है, वो ऐसा ही है, वो बहुत नीच है, तो मेरे ऊपर दया कर दो और उनको क्षमा कर दो करके वो बहुत ही सौम्य से बात करती है। बच्चों देखो, ये तो कितना उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। देखो इतना सौम्य से वो बात कर रही है, तो दाऊद महाराज को भी कैसा लगा, ये औरत तो इतना पूछ रही है ना करके वो बोले हाँ ठीक है, ये सब ले लो करके अबीगैल बोलती है, ये सब आपके लिए मैंने खाने के लिए लाया है, ये सब स्वीकार करो करके। तब दाऊद राजा बोलता है कि हाँ देखो, आज परमेश्वर ने मुझे एक भलाई की है कि मैं आज एक मनुष्य को मारने वाला था, तो उससे मुझे परमेश्वर ने बचाया है। कैसे बचाया है? तुम्हारे बातों से, तुम्हारे सौम्य और क्या बोलते हैं, जेंटल वर्ड्स से, हाँ तुम्हारे सौम्य बातों से मैं एक हत्या करने से परमेश्वर ने मुझे बचाया है करके। देखो बच्चों, अभी ये स्टोरी पूरे में हमें क्या समझ में आ रहा है, एक ही बात, सिर्फ वो आके क्षमा मांगी, कितना सौम्य रूप से वो बात की थी, सिर्फ वो एक ही बात क्या की, वहाँ उनके हस्बैंड के मृत्यु से बचा दी। एक बात सुनो बच्चों, यहाँ ना अबीगैल ने जो काम किया है, सौम्य से जैसे बात किया है, उसके वजह से क्या हुआ पता हो, दाऊद महाराजा को परमेश्वर ने भलाई किया है। क्यों? वो नहीं तो एक मनुष्य की हत्या कर देता था और ये परमेश्वर के दृष्टि में गलत हो जाता था, तो वो बच गए और अबीगैल के पूरे खानदान बच गए और इनके हस्बैंड भी बच गए। देखो छोटी सी बात, सौम्य रूप से जो बात की है, उसके वजह से क्या हुआ, इतना सारा भलाई हो गया है। देखो बच्चों, इसलिए सौम्य से बात करना, जेंटलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चों। वो हमारे जीवन में ना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, परमेश्वर भी हमसे वो ही चाह रहे हैं। देखो मैं थोड़े वर्ड्स बताऊँ जो जेंटलनेस में यूज़ किए जाते हैं, वो क्या क्या है, प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये सब ना हमारे जीवन में हमेशा हमें याद रखना है बच्चों, हमेशा इनको यूज़ करना है। अगर किसी को कुछ पूछना है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, ऐसे करके पूछो। और किसी को, बहुत बार हम क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ गलत नहीं करते हैं, ऐसे गलती से हो जाता है, तब हम सोचते हैं क्यों हमें क्षमा मांगनी है, मगर देखो सॉरी करके एक बात बोल दिया तो वो कितना खुश हो जाएंगे, दूसरे लोग हैं ना जो उस तरफ है, वो कितना खुश हो जाएंगे। इसका मतलब है जेंटल वर्ड्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ जेंटल वर्ड्स लाइक प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे वाले यूज़ करने से ना सब लोग खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एनिमी भी नहीं रहेगा और जो कुछ हमें चाहिए वो सब हमको तुरंत मिल जाएंगे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से। और हमने बाद में लेसन में क्या सीखा है बच्चों, यीशु मसीह भी ऐसे ही सौम्यता से, जब बचपन से ही वो उनके माता पिता को हेल्प करते थे और जो कोई उनको परमेश्वर के बारे में पूछते थे या कुछ बोलते थे, वो सब सौम्यता से सुनते थे और उनको जवाब भी सौम्यता से देते थे, है ना। तो बच्चों आज हमने सौम्यता के बारे में सीखा है, मतलब जेंटलनेस। सो अब मैं सोच रही हूँ आज से तुम सब लोग ऐसे जेंटल वर्ड्स यूज़ करोगे। क्या क्या है जेंटल वर्ड्स? प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। मैं चाह रही हूँ क्या आप सब वो बातें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की मदद मांगेंगे कि परमेश्वर हम सब सौम्यता से जिए। ठीक है बच्चों, सब लोग आंखें बंद करो, हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के लेसन के खिलाफ हम आपसे धन्यवाद बोल रहे हैं प्रभु जी। सौम्यता के बारे में हमें सिखाए प्रभु जी और उसको हमारे जीवन में हम आदत में रखने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। हमेशा हम सबसे सौम्यता से जीने के लिए, सबको सौम्यता से जवाब देने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। किसी से भी कठोर से बात नहीं करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की। कल हम फिर से मिलेंगे। बाय बच्चों।